Hello, dear students. Hope you people are doing absolutely good in this time. This is lecture number 1 of the topic linear network, one of my favorite topic. बहुत मज़ा आएगा. चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं. Myself Oyon, I welcome you all to Dramatic Science. Let's start today's session. So what we will have in our today's session, number 1 is concept of voltage source, number 2 concept of current source, and number 3 AC circuit analysis. This is going to be huge. So let's start with our first topic, that is concept of voltage source. So guys, here we are at our first topic, that is voltage source. The definition is a typical constant voltage source. Typical means we are considering an ideal voltage source. Is an instrument, that means a device, which gives or supplies constant voltage and where output voltage remains same when load current changes. That means a voltage source is simply a device, सिर्फ एक device है जो हम लोगों को constant voltage सप्लाई करेगा. ओके एंड उसका जो आउटपुट वोल्टेज है, मतलब जो वोल्टेज वो हम लोगों को सप्लाई करेगा, दैट विल रिमेन कांस्टेंट. आउटपुट वोल्टेज रिमेन सेम व्हेन लोड करंट चेंजेस. लोड का करंट अगर चेंज भी हो जाए देन द आउटपुट वोल्टेज विल रिमेन सेम. ओके एंड दिस line is for Bengali version student. So characteristics, its internal resistance is 0. This line is important. That means for a ideal voltage source, for an ideal voltage source actually, internal resistance मतलब उसके अंदर कोई internal resistance present नहीं होगा. Okay, end voltage of the source, that means output voltage जो इधर भी था, output voltage is always constant. Current source, a typical constant current source is simply an instrument or device that provides constant current. सिमिलर डेफिनेशन है, सोच के देखो. वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करेगा, करंट सोर्स कांस्टेंट करंट सप्लाई करेगा. सिंपल. कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज समथिंग कॉल्ड इनफाइनाइट और इन्फिनिटी. दिस इज इंपॉर्टेंट. इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था 0. For a voltage source, internal resistance is 0, basically for ideal case. But at the case of current source, internal resistance is infinity. That means huge, large. And if we consider a real life voltage source or real life current source, ये अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो. फॉर रियल लाइफ वोल्टेज सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज टेंस टू 0. दैट मीन्स few hundred ohm or 10th ohm, 10 ohm, 20 ohm, something like this. But at the case of pure life current source, internal resistance is in terms of mega ohm. That means very large. Okay, ideally इसका 0 है, इसका infinity है, but in terms of real वैल्यू थोड़ा चेंज होता है. आइडियली इसका होता है 10 to 100 ओहम और करंट सोर्स का होता है इन टर्म्स ऑफ मेगा ओहम. राइट. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द करंट इन द लोड. दैट मीन्स जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें से कितना करंट जाएगा, उस करंट के ऊपर इस सोर्स का सप्लाइड करंट डिपेंड नहीं करता. ओके, सो दिस टू आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स. Now we have our next slide, that is alternating current circuits. So basically alternating current circuit, that is AC circuit, उसका टोटल 6 टाइप्स है. प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, दैट मीन्स C सर्किट, प्योर इंडक्टिव, दैट इज L सर्किट, LR, that is inductive and resistive circuit, CR, that means capacitive and resistive circuit, and secondly LCR, that is inductive, capacitive and resistive circuit. Right. अच्छा, just a minute, छोटा कर लेते हैं. Now we will consider at first pure resistive circuit, that means an AC circuit which will consist only resistance R, इसकी तरह. So it's an AC source, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये सिंपली एक R दैट इज रेजिस्टेंस है, एंड उसके पास जो वोल्टेज है, दैट मीन्स वोल्टेज डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R इज सिंपली VR, और ये I करंट है.
सो फ्रॉम दिस सर्किट वी कैन से ये जो V वोल्टेज है ये पूरा R के पास जाएगा, दैट मीन्स V इक्वल्स टू वी आर, दिस वन V इक्वल्स टू वी आर। V मतलब V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी, वी आर मतलब I इंटू आर, सिंपली ओहम्स लॉ। तो R को इस तरफ भेज दिया, दैट इज V नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। सिंपल कैलकुलेशन है, ठंडे दिमाग से देखो। दिस V नॉट बाई आर इज कंसिडर्ड एज आई नॉट। आई नॉट का मतलब क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करेंट, पीक वैल्यू ऑफ करेंट, दैट इज सिंपली V नॉट बाई कैपिटल R, V नॉट बाई रेजिस्टेंस। ओके, अच्छा, हेयर वी विल कैलकुलेट 4 थिंग्स। पहले करंट कैलकुलेट किया, फिर पावर, फिर कैलकुलेट करेंगे आपका फेजर डायग्राम एंड फिर इम्पीडेंस। तो करंट हो गया, अब पावर। पावर दैट मीन्स वी विल कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब क्या है, पावर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज एट टी टाइम में कितना पावर है, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। एट एनी इंस्टेंट जो पावर होता है उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस पावर। ओके, तो सिंपली P इक्वल्स टू V इंटू आई। V मतलब V नॉट साइन ओमेगा टी, I मतलब I नॉट साइन ओमेगा टी। तो सिंपली मल्टीप्लाई करो, V नॉट I नॉट रहेगा, साइन 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 स्क्वायर। ओके, तो दिस वन इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। ओके, अच्छा, अगर एवरेज पावर कैलकुलेट करें इन अ फुल साइकिल, फुल साइकिल मतलब 0 टू टी, 0 टू टी, ये टी का मतलब क्या है, टी यू नो दिस, सिंपली टाइम पीरियड। T is defined as, just a minute, time, PERIO, ये माउस से लिख रहा हूँ उधर से, अच्छा नहीं हो रहा। सो टी इज टाइम पीरियड, फुल साइकिल मतलब 0 टू टाइम पीरियड, दैट्स दिस इज द फॉर्मूला 0 टू टी। और ये उसका एक्सप्रेशन है PAV, P बार और समथिंग लाइक दिस। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, 0 टू टी पी डी टी, 0 टू टी डी टी, 0 टू टी पी डी टी, पी ऊपर रहेगा, फिर नीचे 0 टू टी डी टी, राइट। तो अगर सिंपली ये पी का वैल्यू इधर पुट कर देंगे, वी विल गेट द एक्सप्रेशन ऑफ average power, that will be in the next slide. So here we have the calculation. P bar equals to simply क्या हो गया, नीचे तो 0 टू कैपिटल टी डी टी था, तो सिंपली 1 बाई टी, और इधर 0 टू टी V नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। V नॉट आई नॉट कॉन्स्टेंट है, दैट्स वाई वो बाहर चला जाएगा, इस स्टेप में बाहर चला गया, तो अंदर सिंपली साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। इसको आप एक राफ कॉपी में प्लीज़ इसको इंटीग्रेशन करो, खुद करो। 0 टू कैपिटल टी साइन स्क्वायर डी टी कैसे करेंगे, बाहर हाफ लाएंगे, इधर 2 लाएंगे, फिर कॉस ओमेगा टी लाएंगे, ऐसे करके इसको इंटीग्रेशन करके मुझे एज अ होमवर्क भेजो। और इधर जब टी का नो वैल्यू पुट करेंगे तो एक जगह वी विल पुट समथिंग लाइक दिस 2 पाई बाई ओमेगा, राइट। टी इज डिफाइंड एज 2 पाई बाई ओमेगा। टी का वैल्यू तो पुट करना ही होगा क्योंकि वो तो अपर लिमिट है, तो उस जगह 2 पाई बाई ओमेगा पुट करेंगे। पुट करके देखो सिंपली कैपिटल टी बाई टू आएगा, दिस वन कैपिटल टी बाई टू साइड में लिखा हुआ है कैपिटल टी बाई टू। तो टी टी कैंसिल हो गया, इस 2 को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, मतलब √2 इंटू √2, तो V नॉट बाई √2, V नॉट बाई √2। और V नॉट बाई √2 ये RMS वैल्यू है, that you have learned in your class 12 syllabus, class 12 AC circuit analysis. So V naught by √2, that is VRMS, I naught by √2, that is IRMS. So this one is one of the expression of average power. और एक भी एक्सप्रेशन है, V नॉट आई नॉट इज कंसिडर्ड एज P मैक्स, दैट मीन्स ये मैक्सिमम पावर हो सकता था, V नॉट आई नॉट। तो P मैक्स के हिसाब से क्या होगा, सिंपली V नॉट आई नॉट बाई 2 था, तो P मैक्स बाई 2, दैट मीन्स मैक्सिमम पावर का हाफ हो जाएगा। और भी एक एक्सप्रेशन है, V इक्वल्स टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। इधर तो RMS है, दैट्स वाई VRMS इक्वल टू IRMS इंटू आर। तो सिंपली VRMS की जगह वैल्यू पुट कर दो, वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। तो दिस 3 आर द एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज पावर, राइट। अच्छा, थर्ड टॉपिक क्या है, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम मतलब वी विल प्लॉट वोल्टेज दैट इज V एंड I एज अ वेक्टर फॉर्मेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो EMF एंड करेंट फेजर डायग्राम ऑफ द सर्किट इज समथिंग लाइक दिस। ध्यान से समझो इसको, ये जो हॉराइजॉन्टल लाइन है, दिस वन इज टाइम इक्वल्स टू 0, कंसिडर्ड एज टाइम इक्वल्स टू 0। तो हम लोगों के पास जो V नॉट आई नॉट है, सब में ओमेगा टी मौजूद है। V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, दैट मीन्स ये जो एक्सिस है T इक्वल्स टू 0 उससे ओमेगा टी ज़्यादा है, दैट्स वाई ये ऊपर की तरफ एरो। और एक लाइन में है क्योंकि कोई फेज नहीं है, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, फेज
नहीं है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, फेज नहीं है, और इनफैक्ट वी कैन से फेज इज सेम, उधर भी ओमेगा टी है, इधर भी ओमेगा टी है, जो पहले स्लाइड में था, समझ रहे हो। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, कोई फेज नहीं है, इसलिए दोनों एक ही लाइन में है, और हम लोगों को कारण का वैल्यू थोड़ा सा कम मिलता है, दैट्स वाई आई नॉट छोटा है। और इन दोनों का प्रोजेक्शन एक वर्टिकल एक्सिस में डाला गया है, दिस वन, आई नॉट का प्रोजेक्शन गिव्स द वैल्यू ऑफ आई, वी नॉट का प्रोजेक्शन गिव्स द वैल्यू ऑफ वी। ओके, सो दिस वन इज अ फेजर डायग्राम। अच्छा, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस इधर किसको डिफाइन करते हैं, इम्पीडेंस इज यू कैन कंसिडर दैट एज अ रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में जो नो रेजिस्टेंस, करंट जाने का जो रेजिस्ट प्रॉपर्टी है, हिंड्रेंस है बेसिकली, तो उसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ एसी सर्किट। तो इधर सिंपली रेजिस्टेंस है, दैट्स व्हाई इम्पीडेंस इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस। सो दिस वन इज द concept. Now we have the concept of pure capacitive circuit. That means ये जो सर्किट है इसमें सिंपली कैपेसिटेंस दैट इज C मौजूद होगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो C मौजूद है, तो उसके पास जो वोल्टेज है दैट इज VC, VC इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। और करंट हम लोग मेजर करेंगे, सिंपली सेम कैलकुलेशन है, तो V इक्वल्स टू वी सी, ये जो V AC सोर्स है उसका ही वोल्टेज कैपेसिटर के पास जाएगा, दैट्स वाई V इक्वल्स टू वी सी। V मतलब V नॉट साइन ओमेगा टी, और VC मतलब क्लास 12 में था, सोच के देखो Q इक्वल्स टू सी V, तो V क्या होगा, सिंपली Q बाई सी, इधर तो हम लोगों ने C पकड़ा है, दैट्स वाई VC, तो VC इक्वल्स टू Q बाई सी हो गया। C को भेज दिया तो वी विल गेट चार्ज लाइक दिस। ये किसका एक्सप्रेशन है, चार्ज का एक्सप्रेशन है। और करंट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, I इक्वल्स टू डी क्यू डी टी, दैट मीन्स चार्ज का टाइम डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज सिंपली डिफाइंड एज करंट, तो डी क्यू बाई डी टी। तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, सी वी नॉट कॉन्स्टेंट है, साइन को कॉस में मतलब कॉस हो जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस। और इसको, ये जो कॉस पार्ट है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, इसको साइन ए प्लस बी में ब्रेक करो, रफ कॉपी में देखो कॉस ओमेगा टी आएगा। और ये जो पूरा बड़ा सा टर्म है सी वी नॉट ओमेगा, इसको हमने आई नॉट पकड़ लिया, सो दिस इज कॉल्ड पिग वैल्यू। इधर एक नो कन्वर्शन किया है, वी नॉट इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी, ये क्यों किया, क्योंकि आई तो नॉर्मली करंट है, और करंट मतलब क्या होता है V/R, तो वी नॉट ऊपर रखा और R की जगह 1/ओमेगा सी, आई इक्वल्स टू V/R होता है, इधर तो R नहीं है तो V की जगह V नॉट है, और R की जगह वी आर कंसिडरिंग 1/ओमेगा सी। ओके, सो द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट करंट में π/2 दैट इज 90 डिग्री एडिशन हुआ है, सो वी कॉल दिस current leads by an extra angle of 90 degree with respect to the voltage और EMF। ये जो V है, V के हिसाब से करंट इस लीडिंग एक्स्ट्रा एंगल 90 डिग्री एंगल में वो लीड कर रहा है। ओके, अच्छा, इंस्टेंटेनियस पावर, पावर का कैलकुलेशन सिंपल, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, V मतलब V नॉट साइन ओमेगा टी, I मतलब ये वाला टर्म I नॉट कॉस ओमेगा टी, तो पुट कर दिया, 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी। सो दिस वन इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल कैलकुलेट द एवरेज पावर। सो नाउ एवरेज पावर का फॉर्मूला सिंपल सेम ही है, दैट इज पी बार इक्वल्स टू 0 टू टी, दैट इज फुल साइकिल में होगा, 0 टू कैपिटल टी पी डी टी, 0 टू कैपिटल टी डी टी। फिर से नीचे जो है दैट इज 0 टू कैपिटल टी डी टी, वो सिंपली 1/t हो जाएगा, और p का वैल्यू पुट कर दिया साइन 2 ओमेगा टी। इसको फिर भी मतलब ऐसे ही आप रफ कॉपी में इंटीग्रेशन करो, इसका जो वैल्यू आएगा, ठंडे दिमाग से करना प्लीज़, वैल्यू आएगा सिंपली 0, दैट मीन्स एवरेज पावर क्या हुआ, 0। दस वी कैन कंक्लूड दैट एवरेज पावर डिसिपेटेड मतलब कितना खर्चा हुआ इन प्योर सी सर्किट मतलब कैपेसिटिव सर्किट इज 0। सो ये जो डिसिपेटेड पावर, एवरेज डिसिपेटेड पावर 0 है, तो जिस करंट ने इसको किया, मतलब द करंट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज सिंपली कॉल्ड वाटलेस और लॉसलेस करंट। और ये कौन सा करंट रिप्रेजेंट है, सिंपल द आई करंट जो सर्किट में आ रहा है फ्रॉम द एसी सोर्स,
दैट करेंट इज टर्म्ड एज वाटलेस और लॉसलेस करेंट बिकॉज पावर का कोई लॉस नहीं हो रहा। ओके अच्छा, नेक्स्ट फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम सिंपली ये जो हॉराइजॉन्टल है दिस वन इज द टाइम जीरो एक्सिस। वी नॉट का वैल्यू क्या था, वी का वैल्यू क्या था, वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी एक्स्ट्रा था इसलिए देखो ओमेगा टी चला गया। और वी नॉट का प्रोजेक्शन ये वर्टिकल एक्सिस में सिंपली वी है। ओके अच्छा, आई क्या था, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू दैट इज 90 डिग्री, तो ओमेगा टी से 90 डिग्री एक्स्ट्रा था, लीड कर रहा था इसलिए प्लस 90 डिग्री। देखो इधर एक ड्राइंग है तो वो सिंपली हो गया आई नॉट का प्रोजेक्शन ये वर्टिकल एक्सिस में आई, और करंट का वैल्यू थोड़ा सा कम होता है इसलिए ये वेक्टर छोटा है और ये जो वी नॉट वेक्टर बड़ा है। सो दिस वन इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। और इधर इम्पीडेंस क्या डिफाइन करेंगे, 1/ω/c। क्यू जो पिछले स्लाइड में था आई इक्वल्स टू वी नॉट बाई, मैंने बोला था आर की जगह 1/ω/c कंसिडर किया, तो वो जो आर दैट आर इज कॉल्ड XC, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इधर तो आर नहीं होगा, रेजिस्टेंस तो नहीं होगा, तो वो जो 1/ω/c था उसको हम बोलते हैं XC, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके अच्छा, इसका भी यूनिट ओम होता है, दैट मीन्स इट इज सिमिलर to resistance, but we can say that it is a resistance of capacitive circuit in AC सर्किट। मतलब AC सर्किट में कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कैन बी कंसिडर्ड एज कैपेसिटिव रेजिस्टेंस इन सिंपल टर्म। ओके नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट स्लाइड दैट इज प्योर इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट मतलब इधर एक इंडक्टर मौजूद होगा। इंडक्टर मतलब एज यू कैन सी इन द सर्किट डायग्राम दैट इज एल, ये जो एल है एल इज कॉल्ड इंडक्टर, एक कॉयल की तरह है। तो इसके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है दैट इज सिंपली वी एल, और जो करेंट इसमें आ रहा है दैट इज आई। वी नीड टू कैलकुलेट दैट करेंट आई विच इज कमिंग फ्रॉम द डाउनवर्ड AC सोर्स दैट इज V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ओके तो इधर भी सिंपल कंसेप्ट, V इक्वल्स टू वी एल, V इक्वल्स टू वी एल, वी का मतलब V नॉट साइन ओमेगा टी और वी एल मतलब एल डी आई डी टी, जो फैराडेज लॉ लेंज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में था। तो डी टी को भेज दिया डी आई एक तरफ, तो वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, इसको तो सिंपली इंटीग्रेशन करना होगा क्योंकि डी आई है। तो इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आया, वी नॉट बाई ओमेगा एल, साइन का तो माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस सी, सी का वैल्यू क्या है, सी का मीनिंग क्या है, सिंपली इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। लेकिन फटाक से देखो इधर एक इम्पॉर्टेंट लाइन आया, हमने सी को जस्ट ज़ीरो कंसिडर कर लिया। क्यों, दिस लाइन इज इम्पॉर्टेंट, C represents DC component which is not present over here। मतलब ये जो C है, इसको क्लियरली लिखते हैं, ये जो C है C represents DC component। C तो कांस्टेंट है, ठंडे दिमाग से सोचो AC में तो करंट कांस्टेंट नहीं होता, एंड वी आर डिराइविंग द एक्सप्रेशन ऑफ करंट। करंट का एक्सप्रेशन में एक कांस्टेंट कैसे रह सकता है, दैट मीन्स दिस C रिप्रेजेंट्स DC कंपोनेंट। और हम लोग क्या कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, सिंपली AC करंट, तो AC करंट में DC कंपोनेंट कैसे आएगा, एकदम कूल दिमाग से सोचो। दैट्स वाई C का कोई कंट्रीब्यूशन इस इक्वेशन में नहीं होगा, दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग इट एज ज़ीरो। ओके सो ज़ीरो होगा तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। ये जो वी नॉट बाई ओमेगा है, ओमेगा एल है, इसको हमने आई नॉट कंसिडर कर लिया, एंड आई नॉट का नाम क्या है, फिर से बोलो, दैट इज पीक वैल्यू। और ये जो कॉस ओमेगा टी है मतलब माइनस कॉस ओमेगा टी है, इसको हमने ऐसे कंसिडर किया, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसको ब्रेक कर सकते हो, साइन ए माइनस बी में देखो माइनस कॉस ओमेगा टी आएगा। तो वी गॉट एन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट, -90 डिग्री, दैट मीन्स वी कैन से हेयर करंट लैग्स बाई 90 डिग्री। वोल्टेज जो है V उसके हिसाब से तो करंट कम हो गया इन टर्म्स ऑफ फेज, तो करंट का फेज 90 डिग्री लैग करेगा। और जो कैपेसिटिव है मतलब C सर्किट है उसमें करंट 90 डिग्री लीड करता है। ओके अच्छा, इंस्टेंटेनियस पावर, पावर कैलकुलेशन में V मतलब सिंपली V नॉट साइन ओमेगा टी, I मतलब इसको पकड़ लो माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, फिर 2 लेके आओ दैट इज साइन 2 ओमेगा टी। दिस वन इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। आप क्या करेंगे, सिंपल एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे, आप खुद ही कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो
और एक ग्राफ कॉपी में ट्राई करो, सिंपल पी बार कैलकुलेट करो। सो नाउ एवरेज पावर, उम्मीद है आप लोगों ने खुद कैलकुलेट किए हो। सो सिंपली पी बार इक्वल्स टू ज़ीरो, सॉरी सो P bar equals to 0 to capital T P dt by 0 to T dt, सेम फार्मूला। तो देखो क्या आया, सिंपली 1/t, इसमें 0 टू कैपिटल T माइनस ये अंदर रह गया, इसको बाहर भेज दिया तो साइन 2 ओमेगा टी, सिंपल साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 है, दैट मीन्स एवरेज पावर 0 होगा। दैट मीन्स कोई डिजिपेटेड पावर नहीं है इन प्योर एल सर्किट। इंटरेस्टिंग, ये तो पूरा सी सर्किट की तरह सेम ही है। तो इसमें जो करंट वी आर यूजिंग दैट द एल इज कंज्यूमिंग, दैट इज कॉल्ड वाटलेस करंट। लेकिन फेजर डायग्राम में भाई साहब थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज टाइम इक्वल्स टू 0 एक्सिस। तो वोल्टेज क्या था, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, दैट मीन्स ओमेगा टी ऊपर है, तो ये देखो v नॉट है, इसका प्रोजेक्शन ये एक्सिस में ये v है। ओके अच्छा, i क्या था, i तो 90 डिग्री लैग कर रहा था। किसके हिसाब से लैग कर रहा था, विद रिस्पेक्ट टू v, दैट इज v नॉट के हिसाब से। ये जो i नॉट है ये 90 डिग्री पीछे है, और i नॉट का प्रोजेक्शन ये वर्टिकल एक्सिस में रिप्रेजेंट्स i। ओके सो दिस वन इज द फेजर डायग्राम। और इधर इम्पीडेंस क्या होगा, z इक्वल्स टू एक्सएल ओमेगा एल। सोच के देखो क्या आया था, v नॉट इक्वल्स टू आई आर होता है, तो v नॉट बाई ओमेगा एल था, तो ओमेगा एल विल रिप्रेजेंट रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। उस पर था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इधर इट विल बी इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका भी यूनिट ओहम, दैट इज सेम है। सो क्या पता चला, एक्स एल दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 1 बाई ओमेगा सी, ओमेगा नीचे है ध्यान से, एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इज एक्स एल दैट इज ओनली ओमेगा एल, ओमेगा ऊपर है। Okay, so students, that's all from today's session. I hope you have gained some knowledge from all these three topics. There will be lecture number 2 of this linear network, where I will discuss few other circuits, few interesting calculations also, right? And if you feel any doubt regarding this, you can contact me through Instagram. I will give my link in the description, or you can simply comment in the comment box, right? तो बस चलते हैं आज के लिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, टाटा, बाय बाय।